Today's topic is various approaches of pedagogy or various methodologies of teaching and learning. Dear teachers, we would be discussing three popular approaches. Number one, which is very popular in most of our schools, that is conventional system. We have our own methodology and system which is age old, popular. The second one is Montessori methodology. There is a misconception that we saw many boards, school, particularly preschool boards, that XYZ Montessori. And here Montessori means preschool, but it is not like that. Montessori is a method of teaching, it is a pedagogical approach, and this system can be practiced even up to matric level, that is 10th standard. There are a few schools in India which practices this particular methodology even up to grade 10. Okay, so this is Montessori methodology. Maria Montessori started it. She is the propounder of this particular system. And the third one is integrated approach. And this approach has various names. It is popularly known as integrated approach, and nowadays we call it IB approach, okay, International Baccalaureate approach. Okay, CBSE follows this system. Even NCERT recommends that integrated approach should be followed. Okay, again, under the integrated approach, we follow multidisciplinary approach, or nowadays we use the term theme-based learning or theme-based teaching. Okay, these are the approaches. So we would be discussing in very brief. तो ये तीन तरीके हैं पढ़ाने के. हमने आज तक देखा, अभी तक हमने समझा चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चा कैसे पढ़ता है, हाउ ए चाइल्ड लर्न्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस, स्टाइल्स ऑफ लर्निंग. Now we are looking into, or we are trying to understand what are the various approaches of pedagogy and teaching. So एक तो है अपना conventional method, इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. आप लोग या majority of teachers are following this approach only, and they think that this approach is wonderful क्योंकि हमने उसी में पढ़ा है, तो आप बच्चों को भी उसी में पढ़ाएंगे. बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं कि वो दुनिया नहीं देखते हैं और नई चीज सीखना नहीं चाहते हैं, समझते हैं कि हम इसमें बेहतर हैं, एंड वॉट एवर वी आर टीचिंग इट इज गुड. बिकॉज अल्टीमेटली, अनफॉर्चुनेटली, अक्सर ये हो गया है कि इफ ए चाइल्ड इज स्कोरिंग गुड इनफ मार्क्स, देन योर टीचिंग मेथड इज गुड. क्योंकि इस टीचिंग मेथड को जांचने का, असेस करने का जो हमारे पास पैमाना है, द यार्डस्टिक इज दैट हाउ मच चिल्ड्रन हैव स्कोर्ड. मैट्रिक में कितने बच्चों ने पास किया है, कितना परसेंटेज रिजल्ट आया है. ओके, यही हम देखते हैं. बट इन फ्यूचर एंड वेरी सून, दिस स्टाइल ऑफ टीचिंग और दिस स्टाइल ऑफ असेसमेंट इज गोइंग टू बी ऑब्सोलेट, खत्म हो जाएगा. और इसी सिस्टम में अगर मेमोराइज करके बच्चे आगे आएंगे तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में परफॉर्म नहीं कर सकेंगे. क्योंकि आज आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो चीज देखी जाएगी वो मियर मेमोरी टेस्ट नहीं होगा. यस, memory test will also be there. You need to memorize lot of things, but apart from memorization, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग देखी जाएगी, आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग देखी जाएगी, आपकी जनरल रीजनिंग देखी जाएगी, और इस तरह की जो कॉग्निटिव स्किल से
ताल्लुक रखने वाली चीजें हैं, so these things will be tested. And unfortunately, in the conventional method, we are not preparing our children for the future. We are not preparing our children for the biggest responsibilities. हम मेमोराइज करा रहे हैं, लेकिन बच्चों को हम इमोशनल कोएफिशिएंट नहीं सिखाते। आईक्यू उसकी थोड़ी बना रहे हैं, बट अभी जो एजुकेशनिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि आने वाली जनरेशन के लिए जितनी आईक्यू की जरूरत है उतनी ईक्यू की भी जरूरत है, इमोशनल कोएफिशिएंट की भी जरूरत है। बच्चों को हमारे सॉफ्ट स्किल्स सिखाने की जरूरत है। ओके, बच्चे हमारे ग्रेजुएट हो जाते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू स्पीक, दे डोंट नो हाउ टू लिसन, they don't know how to write a letter, and they don't know how to communicate. Okay, so these are the things required for the life. Okay, these are the things required for the living also. एक तरफ तो हम बोलते हैं कि एजुकेशन इज फॉर लिविंग, और दूसरी तरफ हम बच्चों को कुछ और ही सिखा रहे हैं। एजुकेशन इज फॉर लाइफ हम कहते हैं, लेकिन सिर्फ लिविंग के लिए सिखा रहे हैं। तो जस्ट बच्चों को एम्प्लॉयबल बनाना हमारा मकसद नहीं है। ओके, एंड यू आर द टीचर्स। सिर्फ आप एग्जामिनेशन के लिए बच्चों को तैयार करना नहीं है, बट वी नीड टू ट्रेन देम फॉर द लाइफ। ओके, एंड अनफॉर्चुनेटली ट्रेनिंग फॉर द लाइफ विल नॉट हैपन इन अवर कन्वेंशनल सिस्टम। नंबर एक, कन्वेंशनल सिस्टम में मेजर जो इंग्रेडिएंट है, जो मेजर हिस्सा है, वो बच्चे को आप क्लास में क्या करते हैं, रीडिंग करवाते हैं, क्वेश्चन आंसर लिखाते हैं, मेमोराइज करवाते हैं, फिर रिटन टेस्ट लेते हैं, मार्क्स देते हैं। इतना ही काम है। ओके, ये नहीं देखा जाता कि बच्चे ने कुछ समझा भी है या नहीं समझा है। as long as his answer is good, he has memorized the answer, whatever teacher has dictated or said, if he is reproducing same answer, then he will be getting full mark, and he is a good boy, he is an intelligent boy. Okay, so this is the conventional method, but this will not function in future. आप बदलिए, अपने सिस्टम को बदलिए, अपने स्कूल को बदलिए, अपने टीचिंग स्टाइल को बदलिए। आप अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए तैयार करिए। दूसरा है मॉन्टेसरी सिस्टम। मॉन्टेसरी सिस्टम बहुत ही अच्छा सिस्टम है, लेकिन उसके भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। वो हिंदुस्तान में ज्यादा पॉपुलर नहीं है। मारिया मॉन्टेसरी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था इटाली में, और फिर ये इंडिया भी आया। मारिया मॉन्टेसरी भी इंडिया आई थी। इस सिस्टम में ज्यादा जो फोकस पॉइंट है मैं वो बता रहा हूँ, वो ये कि बच्चों को मटेरियल के जरिए सिखाया जाता है। पर्टिकुलरली जो एज हमने जॉन पैजे की थ्योरी में पढ़ा कि बच्चा कॉन्क्रीट चीजों से ज्यादा सीखता है, कॉन्क्रीट से फिर कॉन्सेप्ट की तरफ जाता है। तो मारिया मॉन्टेसरी ने जितने उसके मटेरियल जो होते हैं ना, मॉन्टेसरी मटेरियल, उसको कहा जाता है मॉन्टेसरी मटेरियल, या जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसको हम कहेंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM। सो मॉन्टेसरी के जो TLM होते हैं वो ज्यादातर आपको सॉलिड चीजों से बनाई जाती है, जो बाद में कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाते हैं। ओके, बच्चा जो है वो कॉन्क्रीट चीजों से कॉन्सेप्ट की तरफ जाता है। One is one there, one is one piece like this. This book is one. So ये पूरा उसके मटेरियल है। फिर इसी तरह उसमें जो लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, लैंग्वेज भी इसी तरह पढ़ाई जाती है। तो हमने, अगर आप अपने स्कूल में इस मटेरियल को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो हमने एक लिस्ट बनाई है, अराउंड 10 और 12 उसके मटेरियल हैं। वो आप मुझे बाद में मुझसे ले सकते हैं कि क्या मटेरियल है, इससे हम किस तरह मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, किस तरह लैंग्वेज पढ़ाएंगे। लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के लिए
बहुत अच्छे मटेरियल हैं प्री स्कूल्स के लिए, एंड आई रिकमेंड यू ऑल टू प्लीज ट्राई टू adopt and practice Montessori methodology as far as possible. Number 3, IB, integrated approach, और इसको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच भी कहते हैं। ये भी वंडरफुल है, डेवलप्ड कंट्रीज में काफी ये पॉपुलर है। ओके, इसमें होता ये कि हम जैसा अप टू ग्रेड 5 यूरोपियन कंट्रीज में ये है कि every child should learn basic thing 100%. ओके, ऐसा हम नहीं कर सकते कि साहब अगर सिलेबस है कि a child has to learn from 1 to 100 in UKG, आप रिस्क नहीं ले सकते कि बच्चे को 1 to 50 पढ़ा दिया आपने and he has scored 50% marks since he has learned 1 to 50 and he has scored 50 marks and he is eligible for promotion. No, it is not like this. This is not fair. Okay, a child has to learn 1 to 100, 100%. So in mathematics, he has to score 100% at least till grade 5. Okay, so इसलिए फाउंडेशन बच्चे का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और हमने ये भी देखा कि बच्चे अपने इंटरेस्ट से सीखते हैं। ओके, बच्चे वेरियस स्टाइल में सीखते हैं। तो ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर एक टीचर होती है जिसको हम कहते हैं मदर टीचर, तो वो बहुत अच्छा इसको इम्प्लीमेंट कर पाती है। फिनलैंड एजुकेशनली बड़ा एडवांस कंट्री माना जाता है, अभी तो वो थोड़ा सा पीछे आ गया, सिंगापुर आगे है। तो फिनलैंड और सिंगापुर में होता ये है कि बच्चों के अप टू ग्रेड 5, इवन जापान में एक ही टीचर होती है और वो पूरे सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके पढ़ाती है। कैसा इंटीग्रेट करती है? फॉर एग्जाम्पल, आज अभी टीचर एंटर हो गई और ग्रेड 1 में है और वो एडिशन पढ़ाती है, तो वो 2 बच्चों को खड़ा कर देगी कि ओके, राम एंड जॉन प्लीज स्टैंड अप। ओके, सो व्हाइल गिविंग कमांड्स टू जॉन and Ram, she will be teaching English language also. Okay, so both वो खड़े हो गए, they stood up. Okay, then she will ask Ram and John, how many boys are there? बोले कि 2 बच्चे हैं सर. Okay, so वो 2 बच्चे हैं. फिर उसके बाद वो राम एंड जॉन को खड़ा करेगी एंड राम हैज वार्म क्लॉथ्स, तो वो पूछेगी व्हाट क्लॉथ शी है, राम ने कौन से क्लॉथ को पहना है. सो बच्चे बोलेंगे वार्म क्लॉथ. सो व्हाई वी ओवर वार्म क्लॉथ्स, हम क्यों पहनते हैं वार्म क्लॉथ्स? बिकॉज ऑफ कोल्ड. सबसे ज्यादा कोल्ड कहाँ होती है? बोलेंगे हिमालय की चोटी पर होगी. ओके, व्हाई देयर विल बी मोर कोल्ड ऑन द माउंटेन्स? साइंस पढ़ा देगी. व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंटेन हिमालय? मैथमेटिक्स आ गई. हाउ यू विल मेजर? इन मीटर्स, व्हाई नॉट इन लीटर्स? ये भी आ गया, फिजिक्स भी आ गया इसमें और आपका मैथमेटिक्स भी आ गया. तो एक टीचर बच्चों को सारे सब्जेक्ट इंटीग्रेट करेगी, जोड़ देगी वो और पढ़ाएगी और बच्चों के ग्रुप बनाएगी. तो इसको कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच और आईबी अप्रोच, थीम बेस्ड. आज की थीम ये है. अब उस थीम पे सारा मामला रिवॉल्व हो रहा है. You are conducting circle time activity, you are conducting that, this, that, okay? सारे करके उस कॉन्सेप्ट को बच्चे को बिठा रहा है. तो ये जो मेथडोलॉजी है इसमें बच्चे को इमर्स कर रहा है नॉलेज. You need to immerse in the knowledge, not just ask him to memorize the information. So conventional system में अक्सर ये हो रहा है, दो the intention or objective of conventional system was not that कि just transfer the knowledge from book to mind, from the mind of teacher to the mind of children. ये transfer of knowledge एजुकेशन का मकसद ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है. क्या होता है ऑब्जेक्टिव? यू नीड टू ट्रांसफॉर्म द चाइल्ड
You need to make him fully understand the concept. You need to teach him how to implement those concepts in the practical life, in the social life, in the scientific life. Okay, तो वो बच्चा जिसको हमने कहा था, जॉन पियाजे ने कहा कि छोटा साइंटिस्ट है, तो वो बड़ा होकर फिर साइंटिस्ट बनेगा. ओके, हमने कहा कि बच्चे दे कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, तो फिर वो बच्चा अपना नॉलेज बनाएगा. इमाम इब्ने तीमिया कहते हैं, वो अरब के बहुत बड़े स्कॉलर थे. वो कहते हैं एजुकेशन का मतलब मेमोराइजेशन या कुछ इंफॉर्मेशन जमा करना नहीं होता. इंफॉर्मेशन का मकसद एजुकेशन का मकसद टू प्रोड्यूस न्यू नॉलेज. सो यू मेक द स्टूडेंट टू प्रोड्यूस न्यू नॉलेज. आपके स्कूल के बच्चे एक नया नॉलेज प्रोड्यूस करें, इतने बड़े बने, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. तो मैंने 3 स्टाइल बताए. आईबी इंटीग्रेटेड अप्रोच वाला. अब इंटीग्रेटेड अप्रोच वाला स्टाइल आप प्राइमरी स्कूल में ग्रेड 5 तक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उस पर आप गौर करें, देख लें. और वैसे टीचर, काबिल टीचर चाहिए हमको. ओके, एक ही टीचर पूरी क्लास हैंडल कर सके, ये ग्रेजुअली पॉसिबल है, इमीडिएटली नॉट पॉसिबल. बट इमीडिएटली यस, इट इज पॉसिबल. प्री स्कूल में एक ही टीचर होती है, सब सब्जेक्ट लेती है, तो प्री स्कूल में आप इसको इम्प्लीमेंट करें. प्री स्कूल की टीचर्स अपने पीरियड को डिवाइड ना करें कि नाउ आई हैव टू टीच इंग्लिश, नाउ आई हैव टू टीच मैथमेटिक्स, नाउ आई हैव टू टीच अरेबिक स्टडीज. ऐसा नहीं. आप जब क्लास में जाती हैं तो आप एक कॉन्सेप्ट को, एक थीम को लेकर सारी चीजें पढ़ा दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, आप पहले दिन एंटर हो रही हैं नर्सरी में या एलकेजी में, सो आप ए पढ़ा रही हैं. ओके, ए फॉर एप्पल. एप्पल आपने पढ़ा दिया, फ्रूट का नाम पढ़ा दिया. एप्पल के साथ अब आप बोलेंगे व्हाट कलर ऑफ एप्पल इज. आप कलर, इसका कलर क्या है बच्चों? बच्चे बोलेंगे रेड, तो आपने रेड कलर भी पढ़ा दिया. ओके, देन आप उसके साथ ईटिंग ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग एप्पल पढ़ाएंगे, तो आपने पढ़ा दिया हेल्दी फूड के बारे में. आप बता सकते हैं कि ईटिंग एप्पल इज बेटर देन ईटिंग ए समोसा or something which is known as junk food. So better to have apple than having uncle chips, or sorry, having chips and other things. Okay, तो ये आपने 2-3 कॉन्सेप्ट इंटीग्रेट कर दिए. फिर आपने बताया एप्पल, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर? 1. तो आपने ए के साथ 1 भी सिखा दिया. So in this way you need to teach, integrate various concepts. This is known as integrated approach of education, which is gaining popularity in European countries and even gradually in India. So to know more about this, please see videos or discuss with me, or inshallah we will help out you to implement this program in your school. It's a wonderful program. Children will learn at a faster pace. Okay, इस पर और वीडियो देखिए आप, बातचीत कीजिए. थैंक यू सो मच.